दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर सर्कल पर चर्चा करने वाले हैं और इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टेट दैट इफ दिस इज ए सर्कल and here are two equal chords and this is the center, then these chords subtend equal angles, means this angle and this angle will be just equal if these two chords are equal. And same way, if angles are equal, then 100% these chords are also equal. So these are 2 points. Number one, if two chords are equal, then they subtend equal angle at the center. And second one, if the angle subtended by chords are equal, then the chords are also equal. एक बार फिर समझ लीजिए कि अगर किसी भी सर्कल में दो कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनके द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। इसी तरह से अगर सेंटर पे एंगल इक्वल हैं तो वो दो कॉर्ड इक्वल होंगे। द स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज recall that two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circle subtend equal angles at their center. तो मैंने अभी आपको जो स्टेटमेंट बताया वो आपका क्वेश्चन फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है, उसे प्रूव करना है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे? टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, सो हियर know about the statement two circles are congruent if they have the same radii. Prove that equal chords of congruent circle subtend equal angles at their center. Okay, it means here is given that two circles and they are congruent. Congruent means the radius of both triangles are equal. After that, prove that chords of congruent circles subtend equal angles at their center. तो हमें यही प्रूव करना है। तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। So here is the exercise 10.2 and the question number 1. So according to the statement, first of all, we will draw two circles. Just you can see on the blackboard or whiteboard. This is the one circle and this is the second circle. And these circles are congruent. Congruent means they have the same radii, same radius. Okay, so and here is the given that two congruent circle and they have the same radii. Prove that equal chord, this is the chord CD and these chords are also equal. This is center O and this is center O dash. Okay, now we will prove that angle AOB just equal to angle CO dash D. Okay, so now start the proof. First of all, we will write here given things. Given two circles with center O and O dash. Okay, this is given two circles. After that, AB equal to CD chord, we will prove that, means two things is given that
two circles with center O and O dash. We will take any other center's name also. Now chord AB equal to chord CD. Also we can take another name of the chords. Now to prove that angle AOB just equal to angle CO dash D. Now to prove करना है हमें proof. What to prove here? No requirement of construction because this is already given that the angle subtended by chord. So this radii is already given. Now you will start the solution for this. You will write that in triangle AOB and triangle CO dash D. You can write that AB equal to CD. This is given already because these are the chords of two circles, and OA equal to, we will write here AO. AO equal to CO dash. Why? Radii of same circle. Radii of same circle, not here is same circle, here are two circles. So you will write it is also given, not radii of same circle, because question says that they are congruent circle, and congruent means radius are equal. So you will write here once again given. And after that, next point here is given that OB just equal to O dash D. OB, this is also given that O dash D. This is once again given because these are the radius and these two circles are congruent. Therefore, we can write that the radius of both circles are equal if they are congruent. Okay, so you can see here in two triangles all sides are equal. So you can write here by SSS criterion or congruency. You can observe here side, 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 all three sides are equal. Then you can use here criterion. SSS means side, side, side criterion. These two triangles are congruent, that is triangle AOB congruent to triangle COD. Then you can write after this result, that is angle AOB, the last statement, that is if two circles are congruent, then equal chords of congruent circles subtend equal angles at their center. Finally, you will write this statement and then you can write after that proved. So this is the question just based on the theorem. Okay, so I think that all concept of this question will be clear, had been clear. Now moving for next question number 2 for the same exercise. Question 2 says that prove that if chords of congruent circle subtend equal angles at their center, then the chords are equal. So this is just reciprocal of this question. Okay, now you can use the same things and you will prove here. This is as just you see in this blackboard, whiteboard. You can make the same diagram for this, and here you will write that
two angles are equal, means chords subtended same angle, that is equal angle. So you will write here angle AOB just equal to angle CO dash D. Okay. After that, here you will prove that chord AB equal to chord CD. Chord AB equal to chord CD. This is a requirement. Now you will select these two same triangles, that is in triangle AOB and in triangle CO'D. Then you will write first of all, that is OA equal to AO. You can see here AO just equal to CO dash. AO equal to CO dash, and this is given because here is given that congruent circle, it means radii will be same. So now again you will use this given things, that is angle AOB just equal to angle CO dash D. This is also given in the question. And finally you will write these third things, that is OB next radii of this circle just equal to O dash D. Okay, so this is also given in this question. So you will write this given. Now you can observe that here is side and then angle and again side. So by angle, side criterion means you will write here by SAS criterion, triangle AOB congruent to triangle CO dash D. And finally, if these two triangles are congruent, then you can write the result. All corresponding parts of these two triangles are equal. It means you can write that AB equal to CD, and these AB and CD means if two triangles are congruent, then you know that all corresponding parts are equal, and then you can say that AB equal to CD, this is the side of a triangle. So AB and CD you can observe in the diagram, these are chords. So you can write that chord AB equal to chord CD. And finally you can write this by CPCT, and then you will write the statement that chords of congruent circles subtend equal angles at their center. Okay, so this they are equal. Okay, मीन्स जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो एक बार फिर फाइनली जो क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रूव दैट को आप हटा देंगे और सीधा लिखेंगे इफ chords of congruent circle subtend equal angles at their center, then the chords are equal, and then you can write finally hence proved. So this is the question number and second. So here is only two questions in this exercise 10.2. Now moving for next exercise 10.3. First of all, I want to tell you that once again some important points for this. That is point number 1. The perpendicular from the center of a circle to a chord bisect the chord. मैंने आपको जो पॉइंट नंबर 1 बताया उसका मतलब क्या है उसको हम लोग ध्यान से एक बार समझ लेंगे कि इसका मतलब क्या है, उसका डायरेक्ट यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बताया है उसका मतलब ये है कि कोई अगर सर्कल है
और उस सर्कल में आपने कोई कॉर्ड ड्रॉ किया हुआ है, कॉर्ड पर आपने सेंटर से परपेंडिकुलर भी ड्रॉ किया हुआ है, तो वो जो सेंटर से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये आपको याद रखना है और इसे आप प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे प्रूव किए थे, उसी तरह से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी प्रूव कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट शो करने के बाद। तो मैं आपको जो चीज बता रहा हूं उसको एक बार फिर समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि कोई सर्कल है और इस सर्कल में आपका एक कॉर्ड है, ये आपका कोई सर्कल और इस सर्कल में एक कॉर्ड भी आपको दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि मैंने आपका ये कॉर्ड ड्रॉ कर लिया और इस सर्कल का सेंटर ये है। अब आप इस सेंटर से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो कॉर्ड ए बी था ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, मीन्स ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट था, इसे याद रखना पड़ेगा। इसका यूज आप आगे फ्यूचर में भी करेंगे, क्लास 10th में भी करेंगे। क्या है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। Okay, now the second point is the also most important point. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. Means इसका उल्टा कि अगर ये chord bisected हो रही है तो ये जो लाइन आपने सेंटर से ड्रॉ की है वो परपेंडिकुलर होगी। मीन्स इसके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, मीन्स अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, और अगर ये दोनों पार्ट आपको ऑलरेडी इक्वल दे रखे हैं तो इसका मतलब ये जो सेंटर से लाइन ड्रॉ किया हुआ है वो परपेंडिकुलर होगा। ये दूसरा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट भी है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं तो उन तीनों पॉइंट से एक और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, जबकि ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में नहीं है। तो मान लो जैसे यहाँ पे हमने ये जो सर्कल ड्रॉ किया है, यहाँ पे आपका एक पॉइंट यहाँ था और एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, तो इन तीनों पॉइंट से एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। कोई दूसरा सर्कल इन तीनों पॉइंट पे नहीं ड्रॉ किया जा सकता जिसमें तीनों पॉइंट एक साथ आ रहे हो। ठीक है, अगर ये कोलिनियर है, अगर ये लीनियर है, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स ले लिए, एक यहाँ पे ले लिया, एक यहाँ ले लिया, एक यहाँ ले लिया, तो कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो ये केस तभी होगा जब ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर होंगे। नॉन कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में ना हो। पूछिए। तो मैं आपको बता रहा था नॉन कोलिनियर और कोलिनियर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर जो एक ही लाइन में हो, और नॉन कोलिनियर का मतलब जो एक लाइन में ना हो। तो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में नहीं है, इसीलिए इन तीनों पॉइंट से केवल और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन इसका प्रूफ भी है, बट प्रूफ ऑफ दिस थिंग्स जस्ट डिलीटेड फ्रॉम योर सेंटर सिलेबस। आपका जो इसका प्रूफ है इस क्वेश्चन का, वो आपके सिलेबस से अभी इस साल के लिए हटा दिया गया है। ठीक है, तो इसका प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो उसके लिए इसे याद रखना होगा कि अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उससे केवल और केवल एक ही सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है, और अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर है मीन्स एक ही लाइन में है तो कोई भी सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे। आगे आपका जो यहाँ पे ये 3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स पे आधारित एक्सरसाइज 10.3 है, और 10.3 में
3 क्वेश्चंस ही दिए हुए हैं। तो आप देखिए यहाँ पे जो 3 क्वेश्चंस दिए हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ओरल टाइप का क्वेश्चन है। मैं आपका स्टेटमेंट बताता हूं कि ये क्वेश्चन क्या है, आप भी इसका आंसर बता पाएंगे। ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10.3। नाउ वी हैव टू चेंज दिस एक्सरसाइज नंबर 10.3 and here is the question number first, and question number first is given that ड्रॉ पेयर ऑफ सर्कल्स, मीन्स आपको जो सर्कल ड्रॉ करने हैं वो पेयर में ड्रॉ करने हैं। आफ्टर दैट हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर ऑफ हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन है, आप हर बार 2 सर्किल ड्रॉ करेंगे, 2 सर्किल का मतलब एक पेयर, और फिर आप ये बताएंगे कि कितने कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं और मैक्सिमम कितने कॉमन पॉइंट हो सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट किया, दिस इज द फर्स्ट पेयर। मैंने यहाँ पे एक सर्कल ये ड्रॉ किया और एक और सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे कोई भी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे कोई भी कॉमन पॉइंट भी नहीं होगा। ये आपका फर्स्ट सर्कल और ये सेकंड सर्कल, तो ये एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। तो आपका यहाँ पे होगा नो कॉमन पॉइंट। ओके, दिस इज द केस नंबर फर्स्ट। आफ्टर दैट केस नंबर सेकेंड, अगेन यू ड्रॉ पेयर ऑफ सर्कल्स। इस बार मैंने सर्कल को, या आप उस सर्कल को इस फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया और दूसरा सर्कल आपका ये ड्रॉ कर दिया, मीन्स दे आर टचिंग टू ईच अदर। ये सर्कल सेम रेडियाई के नहीं है, अलग हो सकते हैं, सेम रेडियाई के भी हो सकते हैं, मीन्स दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो पेयर चाहिए आपको, कोई भी सर्कल हो सकते हैं, छोटे बड़े भी हो सकते हैं, पेयर में होने चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मीन्स दे हैव 1 कॉमन पॉइंट। यहाँ पे आपका आंसर होगा 1 कॉमन पॉइंट। इसी तरह से अब आप और भी पेयर ड्रॉ करिए। तो मैंने एक और पेयर ड्रॉ कर लिया। आप देखिए मैंने इस बार ये सर्कल ड्रॉ किया और एक सर्कल ये ड्रॉ कर लिया। नाउ यू कैन सी दैट दिस इज द केस नंबर थर्ड। ये आपका केस थर्ड था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे इस सर्कल का एक पॉइंट है, इस सर्कल का एक पॉइंट है, और इस सर्कल का भी वही सेम पॉइंट है, इस सर्कल का भी सेम वही पॉइंट है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 कॉमन पॉइंट। ओके, अब आप एक और पेयर ड्रॉ कर सकते हैं अगर आप चाहेंगे। तो वो पेयर मैंने इस तरह से ड्रॉ किया। केस नंबर 4, मे बी it is also you can do, that is case number 4, and you will draw this just like that. We draw here a circle and another we draw here is second circle. तो ये मैंने 2 सर्कल यहां ड्रॉ कर लिए, बट दे हैव नो कॉमन पॉइंट। ये भी पेयर है, इसके अंदर ही लिया जा सकता है, या फिर इसका सेंटर कॉन्सेंट्रिक भी किया जा सकता है, इसको इस तरह से भी ड्रॉ किया जा सकता था। सो हियर वंस अगेन नो कॉमन पॉइंट। नो कॉमन पॉइंट इट मीन्स आपके केवल 3 ही केस होंगे, 4 नंबर केस नहीं आएगा। अगर आपने ये केस 4 अराइज भी किया तो भी आपका आंसर क्या आया, सेम, नो कॉमन पॉइंट। तो जो कॉमन पॉइंट वाले केस थे वो यहाँ पे केवल 3 ही होंगे, 3 केसेस होंगे।
जिसमें यहां पर आपको मिलेगा नो कॉमन पॉइंट, यहां पे मिलेगा वन कॉमन पॉइंट, विच टू सर्कल्स आर touch to each other, and here is two common points in which two circles are intersect to each other. So you can observe that how many maximum point, so maximum point, that is maximum common points are 2. Question says that what is the maximum number of common points? So your answer is maximum number of common points are 2. Maximum common points are 2. So this is the next answer of this question. Complete it, and now you move for next question, that is question number 2. अब आप क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहा गया है, सपोज यू आर गिवन ए सर्कल, गिव ए कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। मान लीजिए कि आपको एक सर्कल दे दिया है और उसका सेंटर आपको पता नहीं है, तो उस सर्कल का सेंटर आप कैसे पता करोगे, ये आपसे पूछा गया और कह रहा है इसका कंस्ट्रक्शन बताइए। किस तरह से आप कंस्ट्रक्शन मींस कैसे ये सर्कल को ड्रॉ करोगे और कैसे इसका सेंटर बताओगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको कंस्ट्रक्शन बेस्ड है, ये मींस जो आपका एक चैप्टर है यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, उसमें सारे क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन बेस्ड हैं। तो यहाँ सर्कल चैप्टर में भी एक वही क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का दे दिया गया है, लेकिन ये इसी चैप्टर से रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है। तो वो ये कह रहा है कि कोई सर्कल आपको दिया है, अब आप ये बताओ कि उसका सेंटर कैसे पता करोगे, और अगर आप उसका सेंटर पता कर लेते हो तो उसके स्टेप्स क्या होंगे, उसे आप कैसे बताओगे कि ये इसका सेंटर फाइनली होगा, और जो थर्ड पर्सन है वो आपके आंसर से सेटिस्फाई भी हो जाएगा। तो आप कैसे बताएंगे कि दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, और इसके अलावा इसका कोई दूसरा आंसर नहीं होगा। तो देखिए क्या करना है। फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 हियर इज गिवन दैट ए सर्कल आपको दिया हुआ है, ठीक है। ओके, so we will draw a circle here. Let us, this is a circle. ये हमें सर्कल दिया है और इसका सेंटर आपको पता करना है। तो इसका सेंटर आप कैसे पता करेंगे ये हमें बताना है। तो चलिए देखते हैं इसके सेंटर को पता करने का रूल क्या है। आपको क्या करना है कि आप यहां पे एक कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ ए कॉर्ड विच इज विदाउट मेजरमेंट। हमने एक कॉर्ड यहां पे ये ड्रॉ कर लिया, दैट इज ए बी, दिस इज ए कॉर्ड। ओके, नाउ वी विल ड्रॉ हियर ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब हम क्या करेंगे, इस कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो व्हाट इज द रूल, वी विल टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ दिस ए बी इन योर कंपास। कंपास में आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, एंड टेकिंग ए एज सेंटर, ए को हम सेंटर मानेंगे। सेंटर मानने का मतलब कंपास का पॉइंटर यहाँ ए पर रखेंगे, और एक आर्क आप यहाँ लगाएंगे और एक आर्क इसके इधर पे लगाएंगे, ठीक है। सेम डिस्टेंस विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस यू विल पुट योर कंपास एट बी, बी पर रखेंगे और एक आर्क यहाँ लगाएंगे और एक आर्क इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप इसे स्केल से ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप स्केल से ज्वाइन करेंगे तो आपको इस तरह से ये मिल जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, नाउ यू विल ड्रॉ ए सेकेंड कॉर्ड, कहीं भी ड्रॉ कर सकते, यू आर फ्री। तो मैंने आपका ये कॉर्ड ड्रॉ कर लिया, एंड दिस इज ऑल्सो विदाउट एनी मेजरमेंट। यू कैन टेक स्मॉलर फ्रॉम ए बी एंड ऑल्सो ग्रेटर देन ए बी, छोटा बड़ा भी लिया जा सकता है। और सेम प्रोसेस यहां भी अप्लाई करेंगे।
यहां भी क्या करेंगे, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस ऑफ सी डी, आधे से ज्यादा आप इसका डिस्टेंस ले लेंगे और सी पर अपना कंपास का पॉइंटर रखेंगे और आप यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे और इसके इधर भी एक आर्क लगा देंगे, जस्ट अबव ऑफ सी डी एंड बिलो ऑफ सी डी। उसके बाद विदाउट चेंजिंग द डिस्टेंस यू विल पुट द पॉइंटर ऑफ कंपास एट डी, डी पर रखेंगे, एक आर्क इसके ऊपर लगा देंगे और एक आर्क इसके ऊपर लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद अब आप फिर से स्केल लेंगे और इसको आप ज्वाइन कर देंगे। तो जब आप इसे ज्वाइन करेंगे तो आपने जो ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा, you will get a intersection point. This intersection point is known as the center of circle, that is O. अब आपको इस सर्कल का सेंटर पता चल गया, यही इस सर्कल का सेंटर होगा। तो इस सेंटर को ड्रॉ फाइंड करने का ये रूल है कि आप कोई भी दो कॉर्ड लेंगे, कहीं भी सर्कल में किसी भी प्लेस पे ड्रॉ कर सकते हैं और उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर भी ड्रॉ कट इंटरसेक्ट करेंगे वो इंटरसेक्शन पॉइंट इज नॉन एज द सेंटर ऑफ द सर्कल, वही आपका सेंटर ऑफ द सर्कल होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन करना था। इसके बाद फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 is given that if two circles intersect at 2 points, two circles intersect at 2 points, prove that their center lie on the perpendicular bisector of the common chord। तो ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको ये कहा गया है कि 2 सर्कल्स आपके दिए हुए हैं और ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं। तो आपको ये प्रूव करना है कि इसका जो सेंटर होगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, जो कॉमन कॉर्ड है उसका बाइसेक्टर जो आप ड्रॉ करेंगे उस पर लाई करेगा। दोनों सेंटर सर्कल ए और सर्कल बी, दोनों सेंटर उस परपेंडिकुलर लाइन पर लाई करेंगे। ये आपको शो करना है, प्रूव करना है। तो इसके लिए आप कैसे प्रूव करेंगे, कैसे शो करेंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। Question number 3, here is given that 2 circles, okay, so we will draw here 2 circles. Let us, these are 2 circles, these 2 circles are of different radii, ये दोनों सर्कल डिफरेंट रेडियस के हैं, तो आप इन्हें इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद एक और सर्कल दिया हुआ है, वो भी मैंने ड्रॉ कर लिया, एंड दीज 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मैंने एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया, एंड इट हैज द सेंटर जस्ट यू सी हियर। एंड अगेन क्वेश्चन सेज दैट हियर इज ए कॉमन कॉर्ड, यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड भी है, तो आप ये कॉर्ड ड्रॉ करेंगे। तो ये कॉमन कॉर्ड, एक बार मैं इसे और ठीक से बना लेता हूँ, यहाँ पे कॉमन कॉर्ड के लिए स्पेस थोड़ा सा कम रह गया, तो मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा ड्रॉ करता हूं। आप देखिए मैंने इसको इस तरह से ड्रॉ किया। लेट अस, दिस इज यस, okay, now we will draw a common chord, just you see here these are the intersection points। तो common chord आपका यही हो सकता है और कोई होगा नहीं, तो मैंने इस common chord का नाम लिखा ए बी।
This is A and this is B. Okay, and the name of the center, let us, this is O and this one is O dash. ये इसके सेंटर हो गए. अब इस सेंटर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो आपका, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर लिया, दिस ज्वाइन कर लिया. ठीक है, तो यही वो तो कह रहा है क्वेश्चन कि जो इसके सेंटर हैं वो इस लाइन पर ही लाई करेंगे और कहीं भी नहीं होंगे, इधर उधर नहीं जा सकते हैं. तो ये आपको प्रूव करना है. ठीक है, तो चलिए इसका प्रूव करते हैं. तो प्रूव ऐसे नहीं हो पाएगा, तो प्रूव करने के लिए हम इसका थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, रेडियस का रिक्वायरमेंट, रेडियस का यूज करेंगे. तो हमने इसको ज्वाइन कर लिया, इसको भी इधर ज्वाइन कर लिया. ठीक है, और इसके साथ में इधर भी हमने इसे ज्वाइन कर लिया. ठीक है, अब इसका हम यूज करेंगे एज ए रेडियाई. तो अच्छे से जानते हो सेंटर से सर्कल पर जाने वाली कोई भी लाइन रेडियस होती है, तो ये रेडियस आपकी हो गई. ठीक है, इधर रेड लाइन, रेड डॉटेड लाइन इज आल्सो रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैव सेंटर O, और जो ब्लैक लाइन है वो भी है आपका रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैव सेंटर O डैश. तो ये भी आपकी रेडियस है. ठीक है, और ये इसका सेंटर है. ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमको यहाँ पे एंगल का भी यूज करना है. तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एंगल इस तरह से नोट करते हैं ताकि बार बार ना लिखना पड़े. यहाँ हमने इसे एंगल 1 ले लिया और यहाँ पे ऐसे एंगल 2 ले लिया. ठीक है, और इसके साथ में यहाँ पे एंगल जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका नाम हमने M लिख दिया, और ये आपका एंगल हो गया 3, और इधर हमने एंगल लिख दिया 4. ठीक है, ये आपका होगा एंगल 4. अब आप देखिए जो डायग्राम था वो कंप्लीट हो गया. तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे. गिवन में क्या क्या था, क्वेश्चन नंबर दिस इज 3 गिवन. व्हाट इज गिवन हियर, 2 सर्कल्स ऑफ सेंटर O एंड O डैश. ये आपको दिया हुआ है, 2 सर्कल्स ऑफ सेंटर O एंड O डैश. ये आपको 2 चीजें दे रखी हैं. साथ में आपको कॉमन कॉर्ड भी दिया है, एक कॉर्ड AB. ये आपका कॉर्ड AB भी दिया हुआ है, और कुछ भी नहीं दिया है. इसके बाद आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव दैट here that OO dash is the perpendicular bisector of AB. ये आपको प्रूव करना है, OO dash is the perpendicular bisector of AB. OO dash is the perpendicular bisector ऑफ AB. ये आपको प्रूव करना है. उसका जो उसने स्टेटमेंट बोला कि प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड. तो कॉमन कोड AB है, तो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OO डैश अगर प्रूव हो जाए तो हम अपने रिक्वायरमेंट पे पहुंच जाएंगे. तो चलिए कंस्ट्रक्शन में आप चाहें तो लिख सकते हैं, और अगर ना चाहें तो नहीं लिखने से भी चलेगा. क्योंकि सर्कल दिया है तो रेडियस तो होगा ही होगा. तो कंस्ट्रक्शन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, ज्वाइन OA एंड OB and also O dash A and O dash B. This is the construction. After that we will write here proof of this question.
So how to prove this question? Okay. So first of all, we will take two triangles you can see just here, that is OAO dash, just above triangle OAO dash, and just below of OAO dash, that is OBO dash। ये दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल OAO dash and triangle OBO dash, इन दोनों ट्रायंगल में अब आप देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। यहाँ पे देखिए दिस रेडियस एंड जस्ट इक्वल टू दिस रेडियस, ये आपका ओ ए ओ डैश पहला ट्रायंगल है और ये दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे। तो आप देखो इस ट्रायंगल का लेफ्ट साइड जस्ट इक्वल टू सेकेंड ट्रायंगल लेफ्ट साइड। अब आप राइट हैंड पे पहुंचिए, ओ ए ओ डैश जस्ट इक्वल टू ओ डैश बी। ये क्यों है? बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, और यहाँ भी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा चीज आप देखिए कि ये जो ब्लैक लाइन है ओ ओ डैश, दिस इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल। तो यहाँ पे ये दोनों तीनों चीजें आपको मिल गई। तो आप ये तीनों चीजों को शो कर लीजिए, दैट इज ओ ए इक्वल टू ओ बी, सेम रेडियाई। आप इसको ऐसे लिखिए, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। सेकंड पार्ट में भी वही लिखेंगे। आपका दूसरा है ए ओ डैश जस्ट इक्वल टू बी ओ डैश, दिस इज सेम रीजन, दैट इज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एंड आफ्टर दैट ओ ओ डैश इक्वल टू अगेन ओ ओ डैश, दिस कॉमन। then by SSS criterion, you can say that these two triangles are congruent. That is triangle OAO dash congruent to triangle OBO dash। तो यहाँ पे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यहाँ कॉन्ग्रुएंट होने से तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला जो हमें चाहिए था। यहां से हमें एक रिजल्ट मिल गया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। दीज आर द करस्पॉन्डिंग एंगल, मीन्स दीज आर एंगल्स दैट ऑल करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट first result, that is angle 1 equal to angle 2 by CPCT। तो इसे हम CPCT से इक्वल कर लेंगे। अब जब ये एंगल इक्वल हो जाएगा तो अब हम दूसरा ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जिसके रिक्वायरमेंट पे हमें पहुंचना है। ट्रायंगल AOM, देखिए M इज द दिस पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ कॉर्ड एंड O डैश, ये M है। तो हम इस बार ट्रायंगल लेंगे OAOM और इसके आगे राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल लेंगे AO डैश M। ओके, या फिर आप ये ट्रायंगल, इसमें चूंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आपने प्रूव किया तो ये भी ले सकते हैं, एंगल AOM और इसके जस्ट नीचे वाला एंगल ट्रायंगल BOM। चूंकि आपने एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल प्रूव किया, इसका यूज करना है। तो अब आप इसका यूज करने के लिए ये दोनों ट्रायंगल ले लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको रफ कर लिया मैंने और आगे का पार्ट हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो आप समझते रहिए, मैं हर एक चीज को आपको क्लियर करता चलूंगा। तो आप, मैं आगे क्या करना चाह रहा हूं और इसका क्या मतलब है, बोलिए। वीडियो मेरा बंद नहीं है, वीडियो आपका बंद होगा। तो स्टार्टिंग से कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, आपका वीडियो बंद होगा, मेरा ओपन है सारा।
पे आ रहा है, आप देखिए अपना चेक करिएगा, एक बार मीटिंग को ड्रॉप करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, तो आप देखिए आपका वीडियो ऑफ होगा तो इसलिए नहीं दिख रहा है, या फिर आपके में नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहां से आप थोड़ा सा देखिएगा। तो चलिए आप एक बार उसे मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट वन, इन ट्राइंगल जो मैंने बताया AOM, ओके, ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल दैट इज OBM, इसको आप BOM भी लिख सकते हो, ठीक है। यहां पे आपको क्या क्या चीज मिलेगी, ये ट्रायंगल आपका इतना है केवल, और इधर ये इतना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए OA इक्वल टू OB हो जाएगा, दिस इज द रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, तो वो आप रिजल्ट पहले लिख लीजिए, OA इक्वल टू, यहाँ पे AOM ट्रायंगल लिखा है तो AO यहाँ पे लिखेंगे, AO इक्वल टू BO, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। इसके बाद आप देखिएगा नेक्स्ट आपका जो है ये आपका OM, ये तो कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन होने से पहले आपने जो अभी अभी प्रूव किया उसका वैल्यू यहाँ पे लिखिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, प्रूव्ड एबव, अभी आपने प्रूव किया, तो यहाँ प्रूव्ड एबव लिख सकते हैं या इक्वेशन भी डाल सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रूव्ड एबव, ओके, और इसे क्लियर करके लिख दूं एबव। इसके बाद जो मैंने आपको बताया थर्ड चीज जो कॉमन है वो है आपका OM इक्वल टू OM, दिस इज कॉमन। तो अगर ये देखिए साइड एंगल साइड आ रहा है तो यहां पे लिख सकते हैं बाय SAS क्राइटेरियन दैट इज ट्राइंगल AOM, जो आपने ट्रायंगल सेलेक्ट किए थे, दे आर कॉन्ग्रेंट दैट इज BOM। तो ये अगर कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो रिजल्ट हमें तब भी नहीं मिलेगा, अभी तक हम लोग रिजल्ट पे नहीं पहुंचे हैं, तो फिर क्या करना होगा आगे के रिजल्ट के लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ फिर से CPCT से कुछ मिलने वाला है, तो आप देखिए वो हम यहाँ पे लिखेंगे, मीन्स एंगल जो 3-4 लिया है उसका अभी यूज ही नहीं हुआ है, तो आप यहां पे लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, इसके सभी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, लेकिन हमें यहाँ पे 3 और 4 से मतलब है, हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे इसे 90 डिग्री शो करना चाह रहे हैं, तो 90 डिग्री और साथ में बाइसेक्टर भी प्रूव करना है, तो एक और रिजल्ट आपको मिलेगा, एंड ऑल्सो AM इक्वल टू BM अगेन बाय CPCT, ये भी सी हो जाएगा क्योंकि ट्रायंगल तो वही है, इतना ट्रायंगल लिया था, तो इसमें आपका ट्रायंगल का नाम था AOM, मींस ये भी साइड आ रही है, और इधर ट्रायंगल है आपका BOM, तो यहाँ भी ये साइड आ रही है, तो CPCT से AM और BM मिल जाएगा, तो AM BM जैसे ही मिला तो ये तो आपका प्रूव हो गया कि ये दोनों लाइनें इक्वल हैं, मींस बाइसेक्ट हो रही हैं, इक्वल का मतलब बराबर, बराबर का मतलब बाइसेक्ट हो रही हैं, लेकिन अभी परपेंडिकुलर शो नहीं हुआ, तो परपेंडिकुलर भी अब शो हो जाएगा, आपका आ गया एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 बाई CPCT, ठीक है। बट AOAMB इज ए स्ट्रेट लाइन, आप कह सकते हो A और जो MB है वो स्ट्रेट लाइन है, तो यहां से आप कह सकते हो दैट इज एंगल 3 प्लस, बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री, ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन पे जो होल एंगल होगा वो 180 डिग्री का होगा। अब आप देखो यहाँ 3 और 4 तो इक्वल ही है, तो आप ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो, दिस इंप्लाइज दैट एंगल 3 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री,
ये 4 की जगह 3 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स यहाँ से आपको रिजल्ट मिला एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और 3 तो और 4 इक्वल ही था, तो ये एंगल 4 भी उतना ही हो जाएगा। तो ये चीज भी आ गई कि यहाँ पे एंगल जो 90 डिग्री है और AM और BM इक्वल भी है। तो फाइनली अब आप लिख सकते हो कि AM परपेंडिकुलर, दिस इंप्लाइज दैट AM परपेंडिकुलर टू OO डैश, और इसके साथ AM इक्वल टू BM भी लिख सकते हो फाइनली, एंड AM इक्वल टू BM ये आपने अभी अभी यहाँ पे प्रूव भी किया है, तो वो भी लिख सकते हो। तो अगर ये दोनों चीजें एक साथ हो गई तो फाइनली आप कंक्लूजन पे क्या पहुंचेंगे? फाइनली कंक्लूजन होगा M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब ये पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट हो गया। दिस इंप्लाइज दैट M इज द मिड पॉइंट, ऐसे लिख लेते हैं इसको, M इज द मिड पॉइंट ऑफ ए, मिड पॉइंट ऑफ किसका आ जाएगा? ए बी का, जो ए बी लाइन तो आपका कॉमन कॉर्ड है उसका, ऑफ ए बी। और अगर ये मिड पॉइंट है तो आप क्या कह सकते हो? 10 OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB। सो फाइनली आप यहां रिजल्ट लिखोगे 10 OO डैश इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OO डैश AB। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो आपको यहाँ प्रूफ भी वही चीज करनी थी कि जो OO डैश है ये AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो फाइनली अब आप लिख सकते हो हेंस प्रूफ, यही आपको चाहिए था। तो दोस्तों हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।